Prime Minister Narendra Modi is to pray at the holy Kedarnath shrine hours from now. Kedarnath and Kedarpuri have been decked up for the Prime Minister's visit. What's also extremely significant in this visit is the fact that he will unveil the statue of Jagadguru Adi Shankaracharya. Jagadguru Adi Shankaracharya is the saint credited with the cultural unification of India. During the course of the broadcast, we will tell you in great detail about the achievements of Jagadguru Adi Shankaracharya and the fact that today, while Prime Minister Narendra Modi will be at Kedarpuri, he will inaugurate a number of development projects that were started once again after 2013, after the deluge at Kedarnath. He will also launch phase 2 of the redevelopment program, but the fact also remains that there will be several leaders across the Char Dhams, the 12 Jyotirling, the 12 Jyotirlingas and 18 Shakti Peeths across the country. A very major message of India's cultural renaissance, as some call it, being given out today. So Prime Minister all set to offer prayers at the Kedarnath Dham. Preparations on in full swing to welcome the Prime Minister. Roads and helipad en route, the shrine clear of snow, the beautification of the temple, other arrangements currently being given the final touches. The Prime Minister's aircraft took off from the Palam Technical Area at 5:55 this morning. He will land at the Jolly Grant Airport in Dehradun around 6:40, about 9 minutes from now, and then take a helicopter to Kedarnath Shrine. Likely to reach there in about an hour's time from then, and the darshan at the temple is scheduled for 8 in the morning. He will inaugurate Jagadguru Adi Shankaracharya Samadhi Sthal. Prime Minister Narendra Modi's Kedarnath visit will conclude with laying the foundation stone for various development projects, also launching various new development projects worth 400 crore rupees. And these are images that we are putting out for you of the Prime Minister's earlier visits to Kedarnath. As Prime Minister, this would be Narendra Modi's 5th visit to Kedarnath. And for the Prime Minister, Kedarnath holds a special place in his heart. So every time the Prime Minister makes a pilgrimage to the Kedarpuri, there is no effort spared to spruce up the area in anticipation of his visit. But it's not just in anticipation of his visit, but post the 2013 deluge, a lot of efforts have been made to ensure that devotees who come there, pilgrims who come there, people who worship there, and those who stay there, they are given the best possible facilities and arrangements. You'd recall last time when the Prime Minister was there, he spent a night, a solitary night at a cave. This also tells you about the importance the place holds for the Prime Minister. Now, there is a report that we will show you about the development activities that are going on. So 400 crore rupees worth of development projects, 250 crores for projects already completed as part 1, and then 150 crores for development projects to be carried out part 2. Kedarpuri is getting all decked up. The Prime Minister is coming. प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्षों में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इस केदारपुरी में किया है। आप देखेंगे कितना चौड़ा एक कॉरिडोर जहां हजारों लोग खड़े हो सकते हैं। शंकराचार्य भगवान की प्रतिमा का अनावरण होना है। आप देखेंगे उधर सारे पंडों के सारे मकानों का पुनः निर्माण हो रहा है। आप देखेंगे आस्था पथ अलग से तैयार हो रहा है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा जो उनकी एक आस्था थी, जो उनका एक भगवान केदार के प्रति लगाव था, वो सारा यहाँ नजर आ रहा है। Prime Minister Modi will be offering prayers at the Kedarnath temple. He will inaugurate the Samadhi of Sri Adi Shankaracharya that was damaged in the 2013 deluge. He will also unveil a statue of the Shankaracharya. ये जो
आदि शंकराचार्य जी की यहाँ पर समाधि थी और एक धर्मदंड वहाँ पर एक स्थापित किया गया था, क्योंकि आपदा के समय वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई, जिसका वजन 28 टन है। और ये मैसूर के पास ये इस प्रतिमा को बनाया गया है और बहुत जीवंत है। कृष्ण शिला जो ग्रेनाइट जैसी मजबूत होती है, और एक दक्षिण की जैसी परंपरा है कि वहाँ पर जो प्रतिमाएं बनती हैं वो इसी कृष्ण शिला से बनती हैं। तो उसी कृष्ण शिला से इस प्रतिमा को बनाया गया है आदिगुरु शंकराचार्य जी की, जो लगभग 12 फुट ऊंची है और 28 टन इसका वेट है। It is stunning. They have captured the equanimity of Adi Shankara and also the strength of Adi Shankara. He travelled across India 4 times before he died at the age of 32. So most statues just keep only his calmness, but this brings both elements of it, and it's really beautiful. शुरू में हमने रामबाड़ा से केदारनाथ तक रास्ते का निर्माण किया है। उसके बाद केदारनाथ में 2 हेलीपैड और लिंचौली में 1 हेलीपैड का निर्माण किया है, और केदारनाथ में 40 तीर्थ पुरोहितों के घरों का निर्माण किया गया है, और यहाँ पर 3 पुल हमने बनाए हैं, और जो मंदिर के सामने जो रास्ता है उसका निर्माण किया गया है, और सरस्वती नदी की तरफ यहाँ पर रास्ते का निर्माण किया गया है, और अभी मंदाकिनी नदी की तरफ रास्ते का निर्माण चल रहा है और घाटों का निर्माण चल रहा है। Prime Minister Modi will lay the foundation stone for multiple projects worth over 180 crore rupees. These include the redevelopment of Sangam Ghat, First Aid and Tourist Facilitation Center, Admin Office and Hospital, 2 guest houses, Police Station, Command and Control Center, Mandakini Asthapath Queue Management, and Rain Shelter, and Saraswati Civic Amenity Building. The Prime Minister will also review and inspect the work already done and are still in process along the Saraswati Astha Path. There are few other projects that the Prime Minister is scheduled to inaugurate. In the list are key infrastructure projects which have been completed, like the Saraswati Retaining Wall Astha Path and Ghats, Mandakini Retaining Wall Astha Path, Tirth Purohit Houses and Garud Chatti Bridge on River Mandakini. जो 2013 के बाद यहाँ पे पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे पहले से बहुत ही अच्छा जो व्यवस्था है यहाँ पे दिखाई दे रही है, और सभी यात्रु यहाँ पर आकर बहुत ही प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं। देखिए, मैं लगातार 2011 से यहाँ पे बाबा केदार की यात्रा कर रहा हूँ। 2013 में जो आपदा आई थी उसके 1-2 साल तक काफ़ी तहस नहस यहाँ पे हो गया था, लोगों का रोज़गार छिन गया था, लेकिन आज के समय में लोगों को काफ़ी अच्छा रोज़गार यहाँ पे मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे कार्य जो हो रहा है शासन प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। प्रोटोकॉल के अनुसार और सिक्योरिटी मेजर्स के अनुसार सारी तैयारियाँ, बैरिकेडिंग इत्यादि इत्यादि सब करी जा रही हैं। The BJP has invited sadhus and devotees to be part of the nationwide celebrations on 5th November to be held at 4 dhams, 12 Jyotirlings and 86 prominent temples established across the country by Adi Shankaracharya during his travels. माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था, उसके बाद इसको पुनर्जीवित करने का काम किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने। तब से लेकर अब तक ये मंदिर यूं ही यहाँ पर डटा है, खड़ा है, और दूर दूर से भक्तजन यहाँ पर आते हैं। लेकिन 2013 उस साल की आई प्राकृतिक आपदा ने यहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर दिया था, सब कुछ बिखर सा गया था। लेकिन एक बार फिर से मूर्त रूप में यह हिस्सा कर रहा है बाबा भोले के भक्तों का स्वागत, और पूरी तरह से इसकी रौनक भी इस मंदिर की भव्यता और यहाँ की शालीनता, इसकी कुशलता को देखकर आप समझ सकते हैं। And India Today's Sanjay Sharma now joins me for more from the Kedarnath Dham. Sanjay, किस तरह की तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के आने से पहले? कौन-कौन से काम हैं जो 2013 की त्रासदी के बाद पूरे हो चुके हैं, जिसको आज वो श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे, और कौन-कौन से काम अभी बाकी रह गए हैं जो दूसरे चरण के लिए आज लॉन्च होंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि केदारनाथ 2013 की त्रासदी के बाद मैं
त्रासदी से पहले भी यहाँ कई बार आ चुका और त्रासदी के बाद भी। तो ऐसे में पीछे जो दिखाई पड़ रहा है ये जो पुल है, संगम का पुल है, यहाँ से सरस्वती नदी आ रही है, उधर से मंदाकिनी आ रही है और यहाँ पर उनका संगम होता है। ये पुल नया बनाया गया है क्योंकि पहले भी लोग ये पुराना रास्ता, मैं अपने कैमरामैन पवन से कहूँगा ये पुराना रास्ता है ऊपर से जो आ रहा है, ये रास्ता यहीं से लोग केदारपुरी में प्रवेश करते थे, लेकिन वो पुल त्रासदी में बह गया। उसके बाद ये ऊंचा पुल बनाया गया है ताकि अगर नदी का जलस्तर कभी अगर बढ़े भी, उग्र भी हो, अलकनंदा मंदाकिनी अगर चंडाकिनी की तरह भी हो जाए तो फिर पुल को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा एक आस्था पथ बनाया गया जो आधे किलोमीटर का है, जिसमें श्रद्धालु जा सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं केदारपुरी की, वहां पर बैठने के इंतजाम है श्रद्धालुओं के। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगाई गई है और उस प्रतिमा का लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही वो 28 टन वजनी प्रतिमा है और उसका स्थापत्य ऐसा अद्भुत किया गया है कि जब बर्फबारी होगी तो उनकी दीवारों में, साइड में जो दीवारें हैं उनमें हीटर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से वहां बर्फ जम नहीं पाएगी और जब बर्फ नहीं जमेगी तो प्रतिमा के प्रस्तर को यानी पत्थर को होने वाला नुकसान, जो शिला है जिससे प्रतिमा गढ़ी गई है, निर्मित की गई है, उसको भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बर्फ जब ज्यादा देर रहती है तो पत्थर को नुकसान करती है, पत्थर में क्रैक आ जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत शोध करके ये जाना कि कैसे चीजों को दुरुस्त किया जा सकता है और उन्होंने जैसे ही शीतकाल के लिए कपाट बंद होते हैं तो बद्रीनाथ में भी, केदारनाथ में भी, बाकी और अन्य जगहों पर भी जहां बर्फबारी होती है वहां घी से लपेट दिया जाता है पूरी प्रतिमा को। यहाँ ज्योतिर्लिंग पे भी घी का पूरा लेप किया जाता है और इसके बाद वहां 100 किलो के करीब भस्मी उस पर लगाई जाती है। उसके बाद उनको समाधि में अवस्थित कर दिया जाता है और उत्सव मूर्ति यहाँ से रवाना होती है जो ऊखी मठ में 6 महीने उसकी सेवा होती है। लेकिन यहाँ पीछे की दृश्यावली देखें तो हिमाच्छादित पर्वत ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शिव की स्तुति है, जिसमें कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा का उदय हो रहा हो, किसी योगी ने भस्मी से अपने पूरे शरीर को लपेट रखा हो और उस पर जो ये गंगा यमुना ये धाराएं हैं अलकनंदा सरस्वती के, ऐसा लग रहा है कि ये भुजंग की तरह ऊपर से नीचे की ओर सरक रही हैं। तो इस तरह से एक साक्षात योगी जो हरनिश दिन रात अपनी साधना में लीन है। प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बताया गया कि आते ही वो सबसे पहले मंदिर में दर्शन करेंगे और वहां रुद्राभिषेक संपन्न करेंगे। इसके साथ वो वहां पर थोड़ी देर ध्यान साधना भी करेंगे और उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे फिर वो सारे लोकार्पण और ये सारे कार्यक्रम करेंगे इन जगहों का। यहाँ भी प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ से वो मुआयना करेंगे सारा कि निर्माण कार्य सब कुछ सही हो गया है। और इसके बाद ये जो निर्माण कार्य है संजय, ये भी 2 चरणों में हो रहा है। संजय, आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि 2013 में जो त्रासदी आई थी, मंदिर तो बच गया था, एक बहुत भव्य शिला है, एक विशाल शिला है, उसने मंदिर को तो बचा लिया था, लेकिन उसके आसपास बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद 2 चरणों में काम हो रहा है। 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, 250 करोड़ रुपए के वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अब पूरे हो गए हैं और 150 करोड़ के जो सेकेंड फेज है, द्वितीय चरण है, उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आज प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे? द्वितीय चरण में संग्रहालय बनेगा जहां यहाँ की खुदाई से और यहाँ के बारे में पूरा इतिहास, जो पुरानी तस्वीरें हैं वो भी होंगी। इसके अलावा और बाकी लोगों ने जो ग्रंथ लिखे हैं इनके बारे में, वो एक रिसर्च सेंटर भी होगा, यहाँ पर संग्रहालय होगा। इसके अलावा तीर्थयात्रियों के रहने के लिए और भी इंतजाम किए जाएंगे जो केदारपुरी के सीमाओं में और उसके बाहर भी होंगे। जैसे गढ़वाल मंडल विकास निगम ने यहाँ पुनर्निर्माण की योजना के तहत ये सारे निर्माण किए हैं। इसके साथ ही जो पुराना रास्ता है उस पर तो बाकी लोगों ने अपने आश्रम जरूर बनाए हैं, लेकिन यहाँ परिक्रमा पथ के अलावा बाकी श्रद्धालुओं के रहने के लिए स्थान बनेंगे और साथ ही कुछ ऐसी जगहें बनेंगी जहां लोग आराम से साधना भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय तक, बर्फबारी के समय भी कैसे लोग यहां पर रह सकते हैं उसके भी इंतजाम किए जाएंगे। क्योंकि पहले तो ये होता था कि जैसे ही कपाट बंद होते थे यहां कोई नहीं रहता था, लेकिन जब से आपदा के बाद से यहां GMUN के लोग या नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के लोग, ये सारे लोग रहते हैं और यहाँ निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। मैं आपको जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बारे में भी हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। जगत गुरु आदि शंकराचार्य और भारत में उनका महत्व, किस तरह से
4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 18 शक्तिपीठ भारत को एक सूत्र में, एक धर्म में किस तरह से बांधने का उन्होंने सफल यज्ञ किया. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी is also set to unveil the statue of Jagat Guru Adi Shankaracharya at Kedarnath. The Bharatiya Janata Party has made preparations for grand celebrations across the country to mark Prime Minister Narendra Modi's Kedarnath visit. So BJP President JP Nadda has planned cultural programs across the country, including at the 4 dhams, the 12 Jyotirlings, and across 87 prominent temples along the route taken by Jagat Guru Adi Shankaracharya during his historic landmark travels to unite India into one cultural entity. So there will be union ministers, chief ministers of BJP states, other saints and religious leaders who will attend cultural programs across the length and breadth of India. Large screens are also being installed at various locations for public viewing, not just of the Prime Minister's event. So for example, and I will cut across to my colleague Sanjay Sharma for a bit, you have the 12 or the 12 Jyotirlings. You will have Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath at the Kashi Vishwanath Temple. You will have the Madhya Pradesh Chief Minister at the Ujjain Mahakal Temple, Shivraj Singh Chauhan. You will have BJP leaders at the Somnath Temple. And why are these temples significant? Because young Jagat Guru Adi Shankaracharya, he travelled across the length and breadth of our country. He was born on the banks of Purna River in Kerala. At the young age of 8 and 12, he had travelled all the way first to the banks of river Narmada in Madhya Pradesh. Then he went to Kashi Vishwanath. Then he's also said to have travelled all the way up to Kashmir, uniting this country in one cultural bond. Sanjay, जो यात्राएं रही जगत गुरु आदि शंकराचार्य की, 4 धाम, उत्तर से दक्षिण, बद्रीनाथ से रामेश्वरम, पूर्व से पश्चिम, द्वारकानाथ से केदारनाथ, द्वारकानाथ से जगन्नाथपुरी, देश को एक सूत्र में पिरोया. जी हां, बिल्कुल. उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर अटक से लेकर कटक तक यात्राएं की और उन्होंने अपनी दिग्विजय यात्राओं के जरिए उस समय के समाज को जगाने की कोशिश की कि हम जड़ों से भटक रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म नेपथ्य में चला गया था. उस समय बुद्ध और जैन धर्म का ज्यादा प्रसार था. प्रसार भी क्या, ये कहते हैं कि जैसे ही धर्म पुराना होने लगता है उसको रिन्यू करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं. बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत सारी ऐसी विकृतियां आ गई थी. उनको मानने वाले लोग, उनके मठाधीश, मठों में कई तरह की तंत्र साधनाएं प्रचलित हो गई थी. मूर्ति पूजा के विरोध में ये बौद्ध धर्म आया, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां भगवान बुद्ध की हैं. तो जगत गुरु शंकराचार्य 32 साल की उम्र में उन्होंने शिव धाम को गमन किया. 5 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया. 5 साल की उम्र में बच्चे की इतनी प्रतिभा, इतनी बुद्धि जागृत हुई कि उन्होंने अपनी मां को कहा कि अगर मुझे आप सन्यास की आज्ञा नहीं देंगे तो मगरमच्छ मुझे खा जाएगा. 5 साल की उम्र में सन्यास लेने के बाद उन्होंने अपनी मां को वचन दिया कि मां ने कहा कि तू मेरा एक ही बेटा है, मैं अगर मेरा अंतकाल आएगा तो मुझे कौन देखेगा. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आऊंगा और मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा. दिग्विजय यात्राओं पर निकले 5 साल, 8 साल और 11 साल की उम्र में उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया. सारे बौद्ध जितने भी विद्वान थे उन सारे लोगों से शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ में उनको पराजित किया. सिर्फ इतना ही नहीं, वेदों के भाष्य और पुराण उपनिषदों की टीका लिखी. इसके अलावा वो मठामनाय लिखा, एक पूरा सिस्टम तैयार किया कि कैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के साथ जोड़ सकते हैं, पूरे देश को युवा पीढ़ी को किस तरह से सनातन धर्म के साथ जोड़ना है. संजय, रहिए मेरे साथ, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे. देयर इज सो मच दिस कंट्री ओज टू जगत गुरु आदि शंकराचार्य, एंड टुडे व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज एट केदारनाथ is the effort once again to send that message across the length and breadth of our country. A quick break, back with the headlines, our top stories and our continuing coverage on India Today.